The elementary school classroom in a slum. A poem written by Stephen Spender. Before we go on to the understanding of the poem, which is otherwise very brief but has a huge dimension, is huge in terms of its impact. Let us know something about the writer. हम स्पेंडर के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करें इससे पहले कि उनके विचारों से इस कविता के माध्यम से मुखातिब हों। कविता जो है वो है तो छोटी, बड़ी संक्षिप्त है, लेकिन इसके जो गहन अर्थ हैं, इसका जो दायरा है वो बहुत विशाल है। स्टीफन स्पेंडर, born in 1909 and died very recently, just about 25 years back in 1995, lived a rich, long life. And as a poet, he earned good fame. But he was also an essayist. एक कवि भी थे और एक निबंधकार भी थे. He wrote plenty of many essays which have earned kudos for him. So far as his life is concerned, in 1930, he went to Berlin, an English writer otherwise. From England, he left to move to Berlin in Germany. Berlin was the capital of Germany those days. वहाँ चले गए, लेकिन उससे पहले very interesting is that he was a student of University College, Oxford, one of the most renowned colleges in those days in the world, in London, University College, Oxford, जहाँ वो अध्ययन कर रहे थे. Without completing the degree, without taking the degree, he left that university, left that college, और बर्लिन चले गए 1930 में. That means he was not bothered about formal education. उसके लिए उनको चिंता नहीं थी कि एक पूरी डिग्री चाहिए आगे बढ़ने के लिए. But he had joined, but left it midway for different reasons, and then went to Berlin. Now there, he developed interest in politics. 1930s is the time when Germany was aggressive. 31, 32, 33 में Hitler comes to power in Germany. And Germany shows its might during these years, resulting in Second World War that starts in 1939. These years saw this gentleman, Stephen Spender, taking deep interest in politics and also on, you might say, other issues of the day. He was a socialist, समाजवादी विचारधारा के थे, and a pacifist. Now these are two words that you should know a bit. Greatly interested in politics, he declared himself a pacifist, यानी शांति प्रिय. He went to Berlin. Unfortunately, Berlin in those days, or Germany in those days, was the opposite of Shanti Priya Desh. So he was and Shanti Priya is called pacifist, and he was also a Samajwadi, a socialist, believing in equality for all, economic equality, social equality for everyone. So he was a firm believer in socialism, he was a firm believer in pacifism,
and declared himself as a pacifist. During the course of his life, long life, he wrote several famous books based on certain issues. To start with, the Poems of Dedication. Poems of Dedication, The Creative Element, similarly, the Edge of Being, The Edge of Being, The Struggle of the Moderate, The Struggle of the Modern, The Struggle of the Modern, and World Without World. From the titles of these books, you can make out that he had a philosophical thinking and issue-based essays he wrote, or issue-based books he wrote, and some of these titles that you have seen. Now, when it comes to this particular poem, that is the elementary school classroom in a slum. In this poem, he has concentrated on the theme of injustice and also on class inequality. इस कविता में जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें उन्होंने अन्याय और सामाजिक असमानता, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, इस पर इन्होंने प्रहार करते हुए कविता लिखी है. सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता, social injustice. So this poem, and while doing so, he takes the example of classroom. हमारे आपकी समझ में ये इनजस्टिस और अन्याय की बात आए, इसके लिए उन्होंने क्लासरूम के दृश्य को लिया है. और क्लासरूम के दृश्य में क्लासरूम के अंदर के बच्चों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता पर प्रहार किया है. और अंत में जो बात कही है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतिहास वही बनाता है जो अध्ययन करता है, जो कठोर श्रम करता है. So let us start with the understanding of the poem, The Elementary Classroom in a Slum. An elementary classroom in a slum by Stephen Spender, Class 12, English, Poetry. An elementary classroom in a slum by Stephen Spender. Elementary Classroom in a Slum is a poem. A poem which has depiction of values, which has a picture of discrepancy in the society, which has a picture of inequality and some sort of injustice, the social division is in its own way mentioned by the author, by the poet in this poem. Stephen Spender is famous for writing such poems, such literature, which speaks in volumes about society, its vagaries, the way society functions, and so on and so forth. Here in this poem, which is basically in 4 parts, we will learn classroom, how it reflects a society in the larger perspective. The author takes the classroom as a place of
discussion supposed to be exemplifying the society in a large scale, in a larger phenomenon. The way society is divided, he equates that with the classrooms. Note the topic. It is an elementary school, first of all. An elementary school means a school where basics are taught. School at a very small level, lower level, maybe primary classes and so on. Elementary. Elementary means what? Basic. The elementaries of grammar must be taught. He has a very elementary knowledge of mathematics, very basic knowledge of mathematics, very fundamental knowledge of mathematics, not beyond. बेसिक आधारभूत ज्ञान, सामान्य ज्ञान उसको है, उससे ज़्यादा नहीं. सो इस कविता में एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम का दृश्य है और note this point that this elementary school classroom is located in a slum area. Slum मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, SLUM slum, यानी बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है. स्लम जहाँ पर अत्यधिक दरिद्र लोग रहते हैं, अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, कोई सुविधाएं उनको ऐसी पीने के पानी की या स्वास्थ्य की या ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी विशेष कुछ रहती नहीं जो वास्तव में जिस स्लम की हम बात करते हैं. सो दिस स्कूल इज लोकेटेड इन ए स्लम एरिया एंड द ऑथर टॉक्स अबाउट द स्कूल, द क्लासरूम सीन of one of those such schools, right? So this is the situation of the story. And as far as the background, as far as the message is concerned, the story gives the message about inequality in society. It gives about so-called injustice in society. एक समाज में जो अन्याय है, समाज का जो वर्गीकरण है, समाज जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, उसको क्लासरूम के बच्चों के माध्यम से कवि ने उकेरा है. सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दिस पोएम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. द लाइन्स आर far, far from gusty waves, far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. Rootless weeds मतलब निर्मूल, weeds यानी घास फूस, waves यानी तरंगें, लहरें, and gusty means झोंकेदार, तेज. Gusty means तेज, झोंकेदार. So I come to the line, far, far from gusty waves, दूर, बहुत दूर, झोंकेदार, दूर, बहुत दूर. Gusty waves, these children's faces, चेहरे. और देखिए चिल्ड्रन में एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, चिल्ड्रंस, बच्चों का. एपोस्ट्रॉफी मीन्स का या के या की, और चिल्ड्रन बहुवचन है तो बच्चों का, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस. इसका मतलब होता है का या के या की, यदि एपोस्ट्रॉफी एस है तो. तो यहाँ पर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स मतलब निर्मूल, जिनकी जड़ ना हो, ऐसे घास फूस की तरह,
ऐसे वीड्स की तरह, घास फूस की तरह। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। हेयर, बाल जो हैं वो उनके बिखरे हुए हैं। टॉर्न मतलब फैले हुए, अस्त व्यस्त। टॉर्न मतलब अस्त व्यस्त। टीयर, टोर, टॉर्न। टीयर, टोर, टॉर्न। So the author says, the poet says that far, far from gusty waves, झोंकेदार तरंगों से, झोंकेदार हवाओं से दूर, बहुत दूर, these children's faces, इन बच्चों के चेहरे, like rootless weeds, घास फूस, निर्मूल घास फूस, बिल्कुल बाल। The hair torn round their pallor. Pallor means face. Pallor means face, chehra. Pallor means chehra. So he is describing about the face, faces there in the classroom. And he says, कैसे हैं चेहरे? निर्मूल, घास फूस की तरह उनके बाल फैले हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं, बिखरे हुए हैं। The hair torn around their pallor. The tall girl with her weighed down head. उनमें से एक लड़की भी है, ऊंची लड़की, the tall girl, weighed down head, अपना सिर झुकाए हुए। To weigh मतलब वजन करना, WEIGH, weigh। टी नहीं है इसमें, देखेंगे। WEIGH, टी मतलब वजन, और WEIGH माने वजन करना। वेट डाउन हेड, सिर से को झुकाए हुए अपने वजन से एक ऊंची लड़की भी है। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई, चूहे की आंखों की तरह एक लड़का भी दिख रहा है। चूहे की आंखों की तरह, आंखें धसी हुई, झुकी हुई, एक लड़का भी दिख रहा है जो कागज पकड़ा हुआ है। रैट्स आइज, देखिए रैट में भी एपोस्ट्रोफी, रैट एपोस्ट्रोफी एस, मतलब काके की, चूहे की आंख जैसा। सीमिंग बॉय, लड़के जैसा दिखता हुआ। सीम माने दिखाई देना, महसूस होना। इट सीम्स यू आर अनहैप्पी, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखता है कि तुम नाखुश हो। सीमिंग बॉय, ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें धसी हुई हों, चूहे जैसी हों। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या होता है? अविकसित। दैट बॉय हैज ए स्टंटेड ग्रोथ, अविकसित उसका ग्रोथ है, उसका जो वार्धक्य है ठीक ठाक नहीं है, शरीर से दुबला पतला, शरीर की बनावट भी थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी अलग है, एक सामान्य बच्चे जैसा वो नहीं है, स्टंटेड है, अविकसित है। पेपर सीमिंग, एज आई टोल्ड यू, सीमिंग मीन्स दिखता हुआ। ना पेपर सीमिंग, कागज की तरह दिखता हुआ, थोड़ा मोड़ा, दुबला पतला, दुबला पतला, कागज की तरह थोड़ा मोड़ा, अविकसित बच्चा। So each word here has a symbolic meaning also. And through these symbols, the author is telling you about the children who are there in the classroom. The paper seeming boy, कागज जैसा दिखता हुआ लड़का, with rat's eyes. The stunted unlucky hair. Stunted मतलब अविकसित, अनलकी हेयर मीन उसके बाल जो हैं वो फैले हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। नाउ हियर सी द वर्ड अनलकी, एयर है, HEIR, एयर। एयर मीन्स व्हाट?
Heir means उत्तराधिकारी. रिमेंबर, यहाँ हेयर नहीं है, उत्तराधिकारी है. द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड हेयर means H-A-I-R, hair, and here the spelling is H-E-I-R, heir, and this means उत्तराधिकारी. Unlucky heir of twisted bones. वो बच्चा जो है वो ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड मतलब तुड़ी मुड़ी, ट्विस्टेड मतलब तुड़ी मुड़ी, मुड़ी हुई, उस स्ट्रेट बॉडी उसकी नहीं है. हड्डियां जो हैं वो कुछ अविकसित जैसी हैं, ट्विस्टेड हैं. डोंट ट्विस्ट द स्टोरी. कहानी को मोड़ो मत, तोड़ो मोड़ो मत. डोंट ट्विस्ट द फैक्ट. ट्विस्ट मतलब मोड़ना, तोड़ना, मोड़ना. डोंट ट्विस्ट द वायर. तार को मोड़ो. You are good at twisting the facts. तुम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने में बड़े माहिर हो. You are good at twisting the facts. So twisted bones. Reciting a father's gnarled disease. Reciting a father. Recite करना मतलब जोर जोर से पढ़ना, जोर जोर से बोलना, पढ़ना, एक एक करके वर्णन करना, एक एक कर जोर जोर से उसको बोलना. नाल मतलब गांठदार. GNARLED. गान. नाल मीन्स गांठ बांधना और नाल्ड मीन्स गांठदार. So each of these lines have quite a good number of words used here by the author to describe the look of the children inside the class. And he is taking one simile after another, one example after another. Talks about paper seeming boy. Talks about twisted bones. Reciting a gnarled disease. Gnarled disease, disease माने बीमारी, और gnarled as I said means गांठदार. ऐसी कुछ बीमारी थी. Of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. एक बच्चा जोर जोर से कोने में बैठा हुआ पढ़ रहा था, जोर जोर से वर्णन कर रहा था, रिसाइट कर रहा था. So you have a set of children. एक जगह वो बता रहे हैं कि कैसे बच्चों के बाल अस्त व्यस्त हैं, बिखरे हुए हैं. एक बच्चे की आंख धसी हुई है, एक बच्चा अविकसित दिख रहा है, स्टंटेड ग्रोथ. एक ऊंची बच्ची भी है, देयर इज अ टॉल गर्ल ऑल्सो, जो सिर झुकाए अपना बैठी हुई है. और एक बच्चा वहाँ कोने में जोर जोर से कुछ पढ़ रहा है, कुछ वर्णन कर रहा है. सो दिस इज अ क्लासरूम सीन द ऑथर इज नरेटिंग. डिम मीन्स अंधकार वाला. Now what happens is disease, D-I-S-E-A-S-E. Note the spelling. We normally make mistakes. We write D-E. It is not D-E. It starts with D-I. Disease माने बीमारी. His lesson from his desk of twisted bones, reciting a father's gnarled, what? Gnarled disease. His lesson from his desk. अपने डेस्क में बैठकर वो अपना लेसन जोर जोर से पढ़ रहा है, रिसाइट कर रहा है. And that child, his eyes live in a dream. वो बच्चा छोटा है, उसकी आंखों में चमक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सपना उसके मन में है. चेहरे से दिखता है कि वो कुछ he has a dream, कि उसके कुछ स्वप्न हैं. One unnoted, sweet and young. At the back of the dim class, class के पीछे, dim मने अंधकार नुमा. The school is in a slum, and that also is elementary school, जहाँ पर और कम ध्यान दिया जाता है वहाँ के रख रखाव को, वहाँ की सुविधाओं को. तो elementary school, classroom in a slum, वहाँ पर
कक्षा में थोड़ा अंधकार भी है। डिम माने एकदम अंधकार, मतलब नॉट डार्क बट लाइट इज वेरी लो, देयर इज वेरी लेस लाइट, सनलाइट कमिंग, कह सकते हैं मध्यम रोशनी वाला, यू कैन से मध्यम रोशनी वाला, रोशनी कम आ रही है वहाँ पर। व्हाट इज हैपनिंग इज हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम। एक स्क्विरल माने क्या होता है? स्क्विरल माने गिलहरी, गिलहरी के खेल के बारे में वो सोच रहा है। इन ट्री रूम, ट्री रूम पेड़ में जो कमरे उसके बने हुए हैं उसमें, उसके बारे में वो सोच रहा है। अदर देन दिस, so it's a narration of a classroom scene where children of different types are doing different kinds of activities, look differently, and so that is how the author is trying to show certain examples of a classroom, right? And the words are, I repeat, gusty, झोंकेदार, तेज, rootless, root माने जड़, less माने बिना, बिना जड़ का, weeds means grass, सूखी घास, जंगली घास, जंगली घास फूस, वीड, यू नो, इन ए कारपेट ग्रास, आपने देखा होगा कारपेट ग्रास, कारपेट ग्रास में जो जंगली आ जाता है उसको वीड्स कहते हैं, तो वीड्स को निकाल दिया जाता है। टॉर्न मतलब बिखरा हुआ, टीयर, टो, टॉर्न। पैलर मीन्स फेस, सिमिलरली स्टंटेड मीन्स अविकसित, एंड एज आई सेड पेपर सीमिंग, कागज जैसा दिखता हुआ, सीम मीन्स दिखाई देना। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसका मतलब क्या है? पेपर सीमिंग मतलब कागज जैसा दुबला पतला, फड़फड़ाता हुआ, बहुत पतला दुबला। ही इज टॉकिंग अबाउट ए चाइल्ड। रिसाइटिंग, जोर जोर से वर्णन करना, टू रिसाइट, लेट अस रिसाइट ए पोएम टुडे, रिसाइटिंग। एंड नाल मीन्स गांठदार, डिम मीन्स मध्यम रोशनी वाला। So this part 1 paragraph is all about a classroom scene, and there the author is telling about the kind of children, the kind of looks they wear, जिस तरह के इनके चेहरे हैं, पीली चमड़ियाँ, बिना जड़ों में के बाल, घास फूस जैसे व्यस्त बाल, एक लंबी लड़की जो सिर पकड़े हुए झुकाए बैठी है, और कागज जैसे दिखाई देने वाले लड़के, उसके साथ ही एक अविकसित लड़का भी है जो किस चीज़ का उत्तराधिकारी है? HEIR, एयर, मुड़ी तुड़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी। उसे विरासत में मुड़ी तुड़ी हड्डियां मिली हैं, उसके शरीर में बीमारी है, कुछ ऐसा है, उसको लगता है वो कुछ ज़ोर ज़ोर से अपने क्लास में कुछ बोल रहा है, पाठ बोल कर सुना रहा है। धुंधली रोशनी वाले कमरे के पीछे एक प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है। डिम लाइट, धुंधली रोशनी, और उसकी आंखों में क्या है? एक स्वप्न है। ए ड्रीम लुक्स टू बी देयर अराउंड हिज फेस, एंड दैट चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट स्क्विरल, एक गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है, कहीं और वो हो रहा है वो खेल, उसके बारे में वो सोच रहा है। Having understood the classroom scene, having understood some kind of picture of the classroom, now we come to the part 2, what we can call as part 2 of the story, or stanza, another stanza. Stanza means what? STANZA. Stanza means कविता का हिस्सा, जो 4-4, 6-6 लाइन का एक एक हिस्सा होता है, उसे स्टैंजा कहते हैं। So let's come to the next part of it. On sour cream walls, on sour cream walls, donations, Shakespeare's head. Shakespeare is what? Shakespeare is the name of the most illustrious writer in English. अंग्रेजी में सबसे महान साहित्यकार
शेक्सपियर कहलाते हैं. Look at his spelling. Very few people write it correctly. So you being learned now, you should note down the spelling correctly. Shakespeare. I repeat, Shakespeare. Shakespeare, famous for Macbeth, Julius Caesar, and many other writings. Most famous English author, dramatist, theatre story writer, etc. He belongs to 15th, 16th century, born in England. उसका नाम ना से अगेन एपोस्ट्रोफी एस का, शेक्सपियर का सिर ऑन सार क्रीम, सार माने थोड़ा कड़ुआ, सार मीन्स कड़ुआ, ऑन सार क्रीम वॉल्स. नाउ हियर व्हाट डज इट मीन? सार क्रीम वॉल मीन्स, सार क्रीम वॉल्स थोड़ा सा क्रीमी कलर का की जो दीवार थोड़ी दिख रही है. डोनेशंस मतलब दान, डोनेशन मीन्स दान. क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome riding all cities. This is the narration from the window of the classroom. जो दीवालें हैं उसकी क्रीम कलर की दीवालें हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, शेक्सपियर की फोटो है, डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है. क्लाउडलेस एट डॉन. नाउ सी द लाइन, क्लाउडलेस बिना बादल के. डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. civilized dome riding all cities. civilized डोम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गोलाकार होता है. ये भवन कला का एक नमूना होता है जो यूरोप के लोग बहुत यूज़ करते हैं. डोम हर स्ट्रक्चर के ऊपर, खासकर विशाल स्ट्रक्चर में एक डोम जरूर बनाते हैं. तो गुम्बद, जिसे हिंदी में कहते हैं गुम्बद. सो क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. सब शहरों के ऊपर. राइड करना मतलब चढ़ना. राइडिंग ऑल सिटीज. बेल्ड, फ्लावरी. Tyrolese Valley, open-handed map. Tyrolese Valley means what? घाटी. Tyrolese की घाटी. Open-handed map, खुला नक्शा. Awarding the world its world. So he is describing here the scenic, the picture of the classroom scene as such, the walls. Children, these windows, not this map, their world. Children, these windows, not this map, their world. This map means a map was drawn on the classroom. Shakespeare's picture was there. Few other things. The wall was also there. पीली मिट्टी की दीवार. As I said, sour creamy wall. Or the wall also has Shakespeare's picture, which was given in donation, that was donated. At the same time, सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का चित्र भी वहाँ जो लगा था. सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद वहाँ गिफ्ट के रूप में था. गुंबद, डोम, एज आई सेड. और उसके साथ ही टायरोलिस घाटी. मैंने बताया टायरोलिस घाटी इज इन ऑस्ट्रिया. Tyrolese Ghati, Tyrolese Valley is in Austria. Austria is a country of Europe. The capital of Austria is Vienna. 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 So,
There are so many things lying there in the classroom, along the wall, over the wall. And the wall also is wearing a very funny, a peculiar creamy color. भद्दी थी दीवाल, दीवालों में कुछ लिखा हुआ था, और वहाँ कुछ गिफ्ट भी थे, डोनेशंस थे जो दान में मिले थे या उपहार में मिले थे, गिफ्ट के रूप में मिले थे, तो उनको वहाँ रखा हुआ था, जिसमें शेक्सपियर की फ़ोटो थी, उसमें शहरों के ऊपर एक गुंबद का दृश्य वाला चित्र था, अर्ली मॉर्निंग का सीन था, सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का दृश्य था. ब्यूटीफुल पिक्चर दैट वाज. क्लीन sky, and it has a dawn, scene of a dawn, Suryoday. Dawn means Suryoday, and dusk means Suryast. D-U-S-K, dusk means Suryast. सूर्य के उतरने का जो समय है शाम को, उसे सूर्यास्त कहते हैं, और अंग्रेजी में डस्ट. और सूर्य के उदय के समय को सूर्योदय. सो सूर्योदय इज डॉन, उसका भी चित्र वहाँ था. गुंबद का तो था ही. घंटियों वाली फिर फूलों से जो टाइग्रिस या टैरोलिस जो घाटी थी, उसका भी चित्र था. और एक बड़ा ओपन हैंडेड, जिसे कह रहे हैं, ओपन हैंडेड मीन्स बड़ा हुआ, उदार विश्व मानचित्र भी वहाँ पर लगा हुआ था. खुला हुआ मानचित्र वहाँ लगा हुआ था. What is sealed in? S-E-A-L. To seal मतलब बंद कर देना. Seal the envelope. Seal the envelope. Seal the room. जब नगर निगम के अधिकारी किसी कारण से किसी दुकान को बंद करते हैं, उस दुकान के ओनर पर कुछ कार्रवाई करना है और कुछ शंका है, तो दुकान को बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के बाद उसके ऊपर सील लगाते हैं. सो इट वाज सील्ड इन. सील्ड इन मतलब यहाँ पर विरोधाभास. सील कर देते हैं मतलब दुकान को बंद कर देते हैं, तो सील्ड इन मतलब कैद कर देते हैं, कैद किया हुआ, उसमें समाया हुआ. सो सील्ड इन. लीड स्काई, शीशे से रंग वाला आसमान. लेड स्काई, लीड नहीं, लेड, L-E-A-D. लेड मतलब एक तरह का पदार्थ, जैसे केमिस्ट्री में Pb जिसका सिंबल होता है, लेड. लेड या शीशे के रंग वाला आसमान, खुला आसमान. और केप्स, समुद्र में जाता हुआ, CAPE, केप मतलब क्या होता है? समुद्र में जाता हुआ एक ज़मीन का हिस्सा जो रहता है, तीनों तरफ समुद्र है, और वो हिस्सा केप ऑफ गुड होप. आपने सुना होगा ये नाम, केप ऑफ गुड होप. अफ्रीका के नीचे वो जगह है, प्रसिद्ध जगह, जो भारत यात्रा, भारत की खोज के दौरान पश्चिमी यूरोप के जो यात्री थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वहाँ वो हॉल्ट करते थे, वहाँ से फिर वो अपनी दिशा बदलते थे. अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप. तो केप इज ए प्लेस वेयर द लैंड जट्स आउट. निकलती है, जमीन निकलती है और समुद्र के अंदर समा जाती है. नैरो स्पेस. सो अंतरी समुद्र में जाता हुआ जमीन का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड केप्स. एंड लेड स्काई, एज आई सेड, शीशे जैसा आसमान हो गया था, शीशे के रंग जैसा. नाउ इन दिस, अनलाइक द फर्स्ट पैराग्राफ, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द व्यूज अराउंड. He is talking about the views around, and he says that all these things, including the map that is there on the wall, it speaks about the world around. It speaks about good things in the world: open sky, dome-like structures over cities, Shakespeare, map. At the same time, clean sky, early morning Suryoday sky, and what not. Tyrolese Ghati, the valley. So everything is good that is shown inside the classroom. This is part 2 of the poem. But it says,
But it says, this but is a turning point. But it says, the author says, this map is not the world for the children who are there. As I told you, there was a world map. This world map is not the world for these children. It is not the world for these children. ये मानचित्र जो कक्षा के अंदर बना हुआ है वो उनका नहीं है, बल्कि उनकी जो दुनिया है वो खिड़की है। खिड़की से जो बाहर दिखाई दे रहा है वो उनकी दुनिया है, नॉट दोस विच आर देयर इनसाइड द वॉल्स। इन बच्चों के लिए मानचित्र दुनिया नहीं, बल्कि ये खिड़कियां उनकी दुनिया हैं। द वर्ल्ड इज सीन थ्रू दोज विंडोज। And then author narrates certain more things. He takes a different turn in writing. After narrating about the children in the classroom, their condition, after speaking about the walls around and saying that it is beautiful, he comments that unfortunately for the children inside this classroom, the world is not this beautiful map. The world is not what is shown in the wall, but the world is something that they see through the windows. उनके लिए तो दुनिया वो है जो खिड़कियों से उनको दिखाई दे रही है। और कैसी दुनिया? धुंध से लिखी हुई एक सकरी गली जो एक तरीके से आकाश से बंद है, नदियाँ अंतरी तारों से बहुत दूर है। The author says कि इनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। Their world is different, where all their future is not clear, is written, which is not clear. A narrow passage, which is closed at the end, the sky, by the sky, and a world which is far, far away from the way valleys, far, far away from the rivers, far, far away from these beautiful stars. That is what the author has to say. And so their world is different from what the world is reflected inside the walls, on the walls of the classroom. To say that again, those important lines. Children, these windows, and not this map, their world. These windows is their world, and not what they see inside the classroom in that map and those pictures and those gifts. They are not their world, where all their future is painted with a fog, where all their future is painted with a fog. उस विंडो से उनको फॉगी भविष्य दिखाई देता है। Painted with a fog. Fog means what? Fog मतलब धुंधला। जब ठंड पड़ती है तो ओस और उस ओस के कारण सुबह का जो समय आप देखते हैं वो धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, फॉगी दिखाई देता है। और फॉगी मतलब धुंध, क्लियर नहीं, स्पष्टता नहीं है उसमें, हेजी है। फॉगी बिकम्स हेजी। एंड व्हाट इज स्मॉग? SMOG, like fog which is dhundla due to oss. Smog is fog and smoke combination. जो इंडस्ट्रियल शहर होते हैं वहाँ स्मॉग होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर में, औद्योगिक शहर में जो
मीनारें होती हैं, चिमनियाँ जो होती हैं, उन चिमनियों से जब धुआं निकलता है बहुत ऊंचाइयों में, आकाश में जाता हुआ वो ओस में मिल जाता है और एक तरीके से एक अजीब अलग रंग का माहौल हो जाता है, अलग रंग का दृश्य आकाश हो जाता है। और ऐसा इस तरह का धुंधलापन जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के एमिशन से हो रहा है वो स्मॉग कहलाता है, SMOG, फॉग एंड स्मॉग। तो यहाँ वेयर ऑल इस फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, राइटर कह रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों का जो भविष्य है वो बड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है उनको उस खिड़कियों से, पेंटेड विद ए फॉग। जो दृश्य दिख रहा है उनको खिड़की से वो ऐसा लग रहा है कि मानो अंधकार में है, थोड़ा सा धुंधला है, स्पष्ट नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दे डू नॉट नो विच डायरेक्शन दे आर गोइंग, किस दिशा में वो जा रहे हैं सब उन लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए भविष्य अस्पष्ट है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, और उसमें जो दूर देखते हैं तो वो जाके वो जो खिड़की से जो सड़क जाती हुई दिखाई देती है ऐसा लगता है वो आकाश में मिल गई। इट हैज मर्ज विद द स्काई, ए नैरो लेन, ए नैरो स्ट्रीट, सील्ड इन, एज आई सेड सील्ड इन मीन्स कैद हो जाना, उसके कंट्रोल में आ जाना। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, far far from capes, far far from the stars of words. The stars of words means what? Stars of words means those words of appreciation which are far from these children. Words of appreciation, words of praise, words of happiness. The capes, the rivers, they are all far away from these children. ये तो उनकी पहुंच के बहुत दूर है. Far, far. He is repeating twice. In order to emphasize that, he is repeating it twice. A narrow street sealed in a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. This is part 2 of the poem.